40 farmer organizations have taken to the streets across North India and are marching towards the capital. The farmers are demanding the implementation of the Swaminathan Commission's recommendations and the enactment of a law to guarantee MSP, a minimum support price for crops. The farmers are demanding the provision of pensions for farmers and farm laborers as well. Now, as of today morning, the farmer unions have asked all like-minded farmer organizations to come forward and participate in the Bharat Bandh. The strike was set to largely impact areas in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan. But what was it that really happened across different borders of the national capital? Let us try and find out from some of my colleagues. Javed Hussain joins us at this point in time from Tikri border. Vipin Parmar is with us from Chandigarh. Rajat Kumar is at Pari Chowk, Greater Noida, and Mahinder Singh is with us all the way from Karnal. Vipin, I'm going to come to you first. Well, it was supposed to be a day where, a big impact was supposed to take place because of this bandh. Was it a blast or a whimper? What really happened? Did people actually care about this Bharat Bandh that was announced? These farmer unions are concerned, also the trade unions, they called for this particular bandh. If we talk about Haryana, the reaction from different markets or the different districts of Haryana, it was a mixed up reaction came up, in response to this Bharat Bandh, which was called by these farmer unions and the trade unions. But on the other hand, the farmer protest, which is going on at Shambhu border, yesterday only till 1:30 p.m. in the night, there were talks between union ministers and these farmer leaders. Clearly, it was stated that Okay, there seems to be a technical issue with Vipin's connection. We'll go back to him momentarily. Let me rope in my colleague Javed also, who's joining us from the Tikri border. Javed, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Javed? जावेद, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? Alright, there seems to be a technical issue. We'll try and get you more voices and reactions from the ground. As you can see, the traffic as usual crawling to a halt at border areas. Let's in fact listen into this ground report from my colleague Mahinder. किसान आंदोलन को आज चौथा दिन है, तो वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का ऐलान किया था। दोपहर का वक्त है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से आपको देखने में लगेगा कि नोएडा में भारत बंद का कितना असर है। ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा स्मूथली है। ये रास्ता नोएडा से होकर दिल्ली जाता है और यही रास्ता अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से निकलकर यमुना एक्सप्रेसवे जाता है। फ़िलहाल जो असर है वो तो नहीं दिख रहा, मगर सुरक्षा की बात करें तो नोएडा पुलिस के साथ साथ जो दिल्ली पुलिस के जवान हैं वो अभी तक तैनात है। तमाम बैरिकेडिंग आपको दिखेगी और साफ तौर पे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा है कि धारा 144 लागू किया गया है दिल्ली में। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी धारा 144 लागू है और ये कहा गया है कि अगर कोई शरारती तत्व कोई उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नोएडा में जो किसान थे जिन्होंने ये कहा था कि हम भी भारत बंद का कहीं ना कहीं सहयोग करेंगे, वो भी शांति पूर्ण तरीके से उन्होंने जुलूस निकाला और तमाम जगहों पे अगर देखेंगे तो जो सुरक्षा व्यवस्था है या तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, मगर भारत बंद का असर नोएडा में देखने को नहीं मिला। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। All right, let me in fact go back to my colleague Vipin, who's joining us at this point in time. Vipin, there was some technical issue. We could not in fact finish off where you started. Please go ahead. There was, a call to, have Bharat Bandh today, but the conversation between the government and the farmer unions is still continuing. Both the sides, as what we know, the latest information, have decided not to press and do anything which will, make the situation a lot more worse. But the situation over here at the ground is totally different, Vinny, because every single time when it is being said that we will not be marching towards the borders of Haryana to infiltrate or enter Haryana borders to march towards Delhi, every single time these farmers who are sitting over there at Shambhu border, they try something,
they go towards those barricadings, and forces are forced to use tear gas upon them. And we witnessed today itself at around 12:30 in the noon, again farmer try to infiltrate into the Haryana borders and try to break those barricading which had already been placed before this particular march was announced by the farmer unions. And again, forces were forced to use tear gas upon the farmers, as their leaders are continue in talks with the union minister. But on the other hand, if we talk about the major thing is that the farmers who have come across from all different districts of Punjab, they are not listening to the leaders. At the day when it was initiated by the central leaders that the farmers will be called upon for a meeting to discuss their particular demands. But later on, yesterday only, it was said that we'll be continuing our Delhi march, but in a peaceful manner unless the Sunday's meeting is not there. So on the other hand, other farmer unions belonging to other states, if we talk about Sanyukt Kisan Morcha, also trade unions, they called for this particular bandh. So the objective of this particular protest is still not clear as of now, because they have already put in their demands in front of all the union leaders, but still they are trying to take law in their particular hand, as they are restricted to enter Haryana. Forces were deployed, reserve forces were deployed, and stone pelting was there. So definitely it's sort of a miscommunication amongst the farmers who have already gathered at Punjab's Shambhu border, and the farmer leaders. They are not able to convey their particular message, as every single person over here, they want some solution of this particular problem. As farmer who have come with the tractor trolleys, they are still standing. It's day 5th of farmer protest 2.0. But still, we have to wait and see what sort of discussion will be there. As yesterday only, Bhagwant Mann, he clearly alleged Haryana that drones are coming from their particular territory, and drones are being used to infiltrate in Punjab borders to target farmers. Also, Bhagwant Mann said that the talks were in a good atmosphere, and the demands have already been put in front of union leaders, and we have to wait and see that on Sunday whether these farmer unions or the leaders who will be attending this particular meeting, whether there'll be some sort of conclusion of the from the central side, whether they'll be able to make them understand about the current situation, whatever happening in the at the border, Shambhu border, Punjab. But as far as the bandh is concerned, we saw a mixed up reaction from the different markets or from the different parts of the nation. But there was impact in Punjab, because all the farmers, they have already, they come from Punjab, they are sitting at Shambhu border. So 17 districts were affected. But if we talk about Haryana, the neighboring state which participated during the farmer protest 1.0, the other state, Uttar Pradesh, they were combined, during farmer protest 1.0. They supported Punjab's that particular agitation at the time. But this time, we are not seeing that sort of support. So this is bit frustrating for Punjab, these leaders from Punjab, as starting of this particular agitation, they clearly mentioned that the farmer leaders who constituted political parties after farmer protest 1.0, they'll not be allowed to take part in this particular Delhi march. So this is now a big problem for all the farmer unions over here at Punjab Shambhu border, that they are not getting that much of support, and they are being continuously stopped by the security forces, the reserve forces who have been deployed to maintain the law and order there at the borders. Joining us from Pari Chowk at this point in time. Rajat, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल विनीत, अगर हम आज ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, जो कि राजधानी सटा हुआ क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी दिल्ली कूच की बात की जाए, हालांकि उसमें समर्थन है वो यहाँ के किसानों ने नहीं दिया। लेकिन जब भारत बंद का जब ऐलान किया गया था, तो जो एनसीआर के किसान है या जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान है, उन्होंने भी इस भारत बंद में अपना योगदान है वो दिया है। बाकी आज भारी संख्या में किसान है, वो नोएडा बॉर्डर की बात की जाए या जो तमाम जो ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, वहां पर किसान पहुंचे हुए थे। जो जिले की समस्या है उनको लेकर जो अधिकारी से उनसे बातचीत भी की है,
तो कहीं ना कहीं उनका मानना है कि हमने जो उनके प्लॉट है और जो बढ़ा हुआ मुआवजा है उनकी हम मांग कर रहे हैं। हालांकि बात है वो नहीं बनी है, लेकिन 18 फरवरी को टाइम है वो दिया गया है। वही अगर हम बात की जाए हरियाणा पंजाब से जो किसान है जो कि दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में जो नोएडा सटा हुआ बॉर्डर है, चिल्ला बॉर्डर हो गया या गाजीपुर बॉर्डर हो गया, तो वहां पर भी जो किसान है वो पहुंचने की शुरुआत है। वो उनका मानना है कि अगर हमारा 18 फरवरी को जो हमारी वार्तालाप हुई है, अगर वो मीटिंग सफल नहीं हुई है तो हम दिल्ली कूच करने की तैयारी करेंगे। तो भारी संख्या में किसानों का प्रदर्शन है वो देखा गया, तमाम रूट है उनको डाइवर्ट किया गया, चप्पे चप्पे पर निगरानी है वो रखी जा रही थी। वही अगर परी चौक के आसपास की बात की जाए, जहां पर जो किसान यूनियन और जो एक किसान संगठन के तमाम किसान संगठन थे वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे और लगभग 10 से 12 किलोमीटर के दायरे का लेकर उन्होंने पैदल मार्च निकाला था। तो ट्रैफिक हिसाब से बातचीत कई जगह तमाम जो रूट है उनको डाइवर्ट किया गया। तो नोएडा पुलिस द्वारा पहले ही एक एडवाइजरी जारी की गई थी, उसमें बताया गया था कि जिले में धारा 144 लागू रहेगी और साथ ही तमाम जो रूट है जो कि दिल्ली को जोड़ता है उनको डाइवर्ट किया गया है। और इसकी जो मैप है उसमें भी जानकारी दी गई, उसके साथ साथ एक नोटिस है वो भी जारी किया गया था कि इन क्षेत्रों में जाना अनिवार्य नहीं है, वहां पर जाम लग सकता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस है वो मुस्तैद है, चारों तरफ निगाह है वो बनाए हुए। साथ ही जो तमाम संगठन है, जिसमें ग्रेटर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पर ऐसे तमाम संगठन है जो कि यहाँ के प्रशासन से नाराज हैं, क्योंकि इनकी जमीनी स्तर की कुछ मांगे हैं वो प्रशासन वो नहीं मांग रहा है, तो उसको लेकर किसानों में काफी नाराजगी है। तो उन पर निगाहें हैं वो पुलिस बनाए हुए है। अगर आने वाले समय में जो 18 फरवरी का जो तारीख का समय दिया गया है, अगर उस दिन समस्या का हल नहीं हुआ है तो निश्चित तौर पर विनीत है ये किसान आंदोलन उग्र आंदोलन करेंगे। दिल्ली कूच की बात की जाए तो यहाँ पर की बात की जाए जो जिस तरीके से चौथा दिन है आज पार्ट 2 का जो आंदोलन था उसमें भारत बंद का ऐलान किया गया था, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान है जिसमें बागपत, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन जिलों के किसान है वो इस आंदोलन में भागीदारी नहीं रही है। लेकिन हाँ, जब भारत बंद की बात आई है तो उन्होंने इसमें समर्थन दिया है। इनका कहना है कि अगर इनकी मांगे थी जो कि जिले स्तरीय मांगे हैं, अगर प्रशासन ने नहीं मानी तो ये लोग कूच में भी समर्थन देंगे। तो कहीं ना कहीं उस समय की स्थिति है वो बहुत भयानक हो जाएगी। फिलहाल जो तमाम बॉर्डरों पर पुलिस है वो तैनात निगाह है वो बनाई हुई है, जो LIU टीम है वो गठित की गई है जिससे लेकर किसानों के बीच क्या हलचल चल रही है वो भी पुलिस को जानकारी मिले। इसके लिए खुफिया एजेंसियां हैं उनकी भी तैनाती की गई है। जो प्राधिकार की बात की जाए, जिला अधिकारी कार्यालय पर बात की जाए, वहां पर स्पेशल पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है, क्योंकि जो नोएडा किसान ऐसा किसान है जो काफी नाराज है प्रशासन से। तो निश्चित तौर पर जो आने वाला समय में अगर 18 फरवरी को निकास हो तो समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो विनीत ये किसान है दिल्ली में जो हरियाणा और पंजाब से किसान दिल्ली कूच करने की बात कहे तो उनका भी ये किसान समर्थन करेंगे। जी विनीत। जावेद हुसैन, my colleague also with us from टिकरी बॉर्डर। जावेद, अगर आप हमारे साथ हैं। जी जावेद, बताइए क्या है आज आपके आसपास का माहौल? भारत बंद की एक ये जो मुहिम थी ये कितनी सक्षम है, कितनी सक्सेसफुल है? और देखिए दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर यहाँ पर किसान के जो भारत बंद का जो ऐलान था, कॉल था, उसके बाद से कुछ भी यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को असर नहीं मिला है। और इस वक्त जो है मैं आपको बता दूं कि टिकरी बॉर्डर पर पूरी तरीके से सिक्योरिटी का जो पिछले 4 दिन से, क्योंकि आज किसान आंदोलन को 4 दिन हो गया और सिक्योरिटी को लेकर तमाम जो यहाँ पर अरेंजमेंट है दिल्ली पुलिस की तरफ से वो पूरा किया गया। तमाम जो डंपर हैं उनको यहाँ पर पूरी दोनों रोड की दोनों तरफ अरेंज किया गया, जिससे कि पिछले बार की तरह जो किसान है वो आगे की तरफ जो है जिस तरीके से वो ट्रैक्टर और बाकी चीजों से आ रहे हैं उनको रिटेलिएट ना कर पाए, और पूरी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम किए गए। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रास्ता सीधा बहादुरगढ़ की तरफ जाता है और यहाँ यहीं से कुछ दूरी पर दिल्ली पुलिस की बैरिकेडिंग है, जो आपको मैंने कुछ देर पहले दिखाया था। ये पूरा एरिया है जो यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पे धारा 144 है और दिल्ली पुलिस यहाँ पे पूरी तरीके से कैंप कर चुकी है। और दिल्ली पुलिस के जो शिफ्ट है यहाँ पर तकरीबन एक बार में बॉर्डर पर 400 पुलिस के अलावा CRPF और रैपिड एक्शन फोर्स को भी यहाँ पर डिप्यूट किया गया। और पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि
पूरा एक सन्नाटा पसरा हुआ है। हालांकि आम जो लोग हैं उनके काम पर कहीं ना कहीं पूरा असर पड़ा है। जो लोग बता रहे हैं कि किस तरीके से उनको दिक्कत हो रही है। फैक्ट्री में भी अब जितनी देर वो काम करेंगे उतनी देर की उनको तनख्वाह मिलेगी। लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है, जो देख सकते हैं। लोगों को यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट अरेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि सब कुछ बंद है। और इस आंदोलन को लेकर जो शंभू बॉर्डर पर जिस तरह से आंदोलन चल रहा है, इसको लेकर जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये पूरा रूट कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इफेक्टेड है। किसी भी तरीके का कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं। और मेरे विजुअल में आप देखिए कि किस तरीके से लोग जो है मेरे पीछे ये पैदल चले आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें कोई भी पब्लिक ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं है। जो लोग बॉर्डर एरिया पे काम करते हैं, हरियाणा से दिल्ली की तरफ आते हैं, उन लोगों को पैदल आना पड़ रहा है। और कई लोग ऐसे हैं जिनका कहना है कि ये मजदूरी का काम है, रोज मजदूरी की काम है। ऐसे में उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अपने पैसे को खर्च कर सके, जिसके लिए लोगों को 4-4, 5-5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है पूरी तरीके से इफेक्टेड हुआ है। बच्चे मेरे पीछे देख सकते हैं, फैमिली जो आ रही है, बच्चे हैं, पैदल आ रहे हैं सामानों को लेकर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से बंद है। बैरिकेड को ब्लॉक कर दिया गया है, कोई भी यहाँ से मूवमेंट नहीं हो सकता है। लोग पैदल जा सकते हैं अगर किसी को, क्योंकि मेरे पीछे जो ये टिकरी बॉर्डर का रिहायशी इलाका है, यहाँ से लोगों को बाइक या फिर दूसरे कन्वेंस से वो अंदर की तरफ अपने घर की तरफ जा सकते हैं। लेकिन जो लोग हैं जो यहाँ से बहादुरगढ़ से आगे रोहतक, झज्जर और आगे का रास्ता जो तय करते हैं, हरियाणा होते हुए आगे की तरफ जिन्हें जाना है, वो रास्ता मध्य प्रदेश की तरफ अगर निकलना है, वो रास्ता पूरी तरीके से ब्लॉक है और आप यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और लगातार बॉर्डर पर 4 दिन किसान आंदोलन को आज पूरे हो रहे हैं। और पुलिस इस तमाम प्रोटेस्ट को, आंदोलन को देखते हुए लगातार अपनी सिक्योरिटी को जो है एग्जीक्यूट कर रही है, लगातार एग्जामिन कर रही है। जो सीनियर्स हैं इस बॉर्डर पर, वो कहीं ना कहीं पूरे सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश में कि और सिक्योरिटी को कितना इंप्रूव किया जाए। लेकिन जो आम लोग हैं या जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके यहाँ पर पीछे आप ट्रक और डंपर देख रहे हैं, वो लोग पिछले 4 दिन से यहाँ पर रुके हुए हैं। कई लोगों का कहना है कि उनके कई रॉ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको उनको पहुंचना जरूरी है, लेकिन इस बॉर्डर की वजह से वो अपने रॉ मटेरियल्स या जिस स्टेट में उनको जाना है वहां नहीं जा पा रहे, जिससे उनसे उनको लाखों का नुकसान हो रहा है। तो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से लेकर जिस तरीके से किसान आंदोलन स्टार्ट हुआ है, इससे कई आम लोगों पे खासा असर पड़ा है। कई लोगों की जिंदगी पर फर्क पड़ा है। चाहे यहाँ पे डेली जो काम करने वाले लोग हो, जो रोहतक जो हरियाणा की तरफ जाते हैं या जो दिल्ली की तरफ आते हैं, या जिनका ट्रांसपोर्ट से जुड़ा हुआ काम है, जो मेरे पीछे तमाम ये डंपर और ये कंटेनर्स को जो रोका गया है यहाँ पर, इन सब में कहीं ना कहीं कुछ मटेरियल्स है, रॉ मटेरियल्स है, कुछ सामान है जिनको ट्रांसपोर्ट के जरिए दूसरे स्टेट में जाना था। लेकिन किसान आंदोलन की वजह से ये सब रुक गया है और इसका सीधा असर आम आदमी और आम लोगों पे पड़ रहा है। लेकिन दिल्ली पुलिस जो उनका कहना है कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से इस पूरे बॉर्डर को सील किया गया, क्योंकि टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर जो कि दिल्ली का बॉर्डर है, इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर, ये सब बेहद संवेदनशील है। क्योंकि पिछले 2020 और 21 के किसान आंदोलन को देखते हुए ये जो पॉइंट है, ये बॉर्डर है, बेहद अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर दिल्ली पुलिस सिक्योरिटी को लेकर लगातार इस पूरे इसको एग्जीक्यूट कर रही है। और आज अगर हम किसान जो जिनकी तरफ से कॉल किया गया था कि भारत बंद करने का, उसका टिकरी बॉर्डर पर कोई खासा असर देखने को नहीं मिला है। जी चलिए महेंद्र सिंह से भी बात करते हैं। महेंद्र, आप करनाल में हैं, ज़रा जायज़ा लीजिए वहाँ क्या माहौल है, किस तरीके की रुकावटें देखने को मिल रही हैं? देखिए, किसान आंदोलन का चौथा दिन था और जिस तरह से कल ही एसकेएम की तरफ से और भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से 2 अलग अलग ऐलान किए गए थे। एसकेएम ने जहां ऐलान किया था कि 16 फरवरी को ग्रामीण भारत बंद होगा, और वहीं चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से ऐलान था कि हाईवे के टोल जो है फ्री कराए जाएंगे। तो पहले तो ये दोनों जो दावे अलग अलग संगठनों की तरफ से किए थे, उनको समझने की जरूरत है, क्योंकि अब की बार जो किसान आंदोलन खड़ा किया है वो पंजाब के संगठनों ने किया है, किसान संगठनों ने किया है। उसमें एसकेएम की भागीदारी अभी तक नहीं है, भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप की भागीदारी नहीं है। तो ऐसे में चौथे दिन कहीं ना कहीं ये सक्रियता जो एसकेएम की तरफ से या चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से दिखाई गई, वो कहीं ना कहीं ये है कि वो आंदोलन में अपनी एंट्री करना चाहते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि आज जो भारत बंद का आह्वान किया गया था, उसका कुछ ज्यादा असर जो है वो देखने को नहीं मिला हरियाणा के कई जिलों में, क्योंकि जिस तरह सब्जी मंडियों की बात की जाए, जहां किसान जो है सुबह सवेरे अपनी उपज लेकर पहुंचता है, वो किसान रूटीन की तरह
तरह से अपनी सब्जी लेकर के मंडियों में पहुंचे, रूटीन की तरह उन्होंने अपने काम किए हैं, तो उसमें किसी तरह का व्यवधान नहीं है। दूध की सप्लाई जो है कोई खास प्रभावित नहीं हुई है, उस पर कोई असर नहीं रहा। बाजार पूरी तरह से खुले रहे हैं। यातायात जो है हरियाणा रोडवेज की बात की जाए वो भी सुचारू रूप से चली है, उसमें भी किसी तरह की बाधा नहीं है। वैसे भारत बंद जो है लगभग बेअसर रहा है। बात की जाए दूसरे फैसले की जो भारतीय किसान यूनियन के चढ़ोनी ग्रुप ने किया था, उसका असर जरूर देखने को मिला, क्योंकि इस ग्रुप से जुड़े हुए किसान हाईवे के टोल पर पहुंचे थे और उन्होंने दोपहर 12 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक जो हाईवे के टोल्स को फ्री रखा। ये ऐलान उनकी तरफ से किया गया था। लेकिन गुरनाम सिंह चढ़ूनी जब यहाँ किसानों के बीच में पहुंचे थे, उन्होंने भी स्वीकार किया कि इस बार के आंदोलन में जो किसान संगठन है उनके बीच आपस में जो है चौधर की जंग चली हुई है, एक दूसरे वो हीरो बनना चाहते हैं। तो इस तरह से कई विरोधाभास बयान जो है हम पहले भी सुनते आए हैं, चाहे संयुक्त मोर्चा में शामिल हो उनकी तरफ से हो, चाहे गुरनाम सिंह चढ़ूनी की तरफ से भी हो। एक बार फिर उन्होंने कहा है कि ये जो किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, जिन्होंने इस बार का किसान आंदोलन किया, उन्होंने एसकेएम में किसी तरह की मंजूरी नहीं ली है, एसकेएम से किसी तरह का सलाह मशवरा नहीं लिया गया। यही वजह है कि ना तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी अब तक इसमें शामिल हुए, ना राकेश टिकैत शामिल हुए हैं। तो हालांकि अब जिस तरह से 2 ऐलान आज के किए गए थे, वो कहीं ना कहीं एंट्री के तौर पर देखे जा सकते हैं कि एसकेएम भी अब आंदोलन में शामिल होना चाहता है, गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ग्रुप भी इसमें शामिल होना चाहता है। लेकिन असर अभी तक उतना नहीं देखने को मिला है हरियाणा के किसानों की तरफ से, क्योंकि अभी जिस तरह से किसान पंजाब के जत्थों को बॉर्डर पर रोका गया है और हरियाणा के किसानों 2020 में जिस तरह से हरियाणा के किसान पंजाब के किसानों के साथ मिलकर चले थे, उनको कहीं ना कहीं दिल्ली जाने की राह दिखाई थी। अब की बार ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। हरियाणा के किसान अब की बार जो है अलग राय रखते हैं, वो इस बार के पंजाब के किसानों के साथ नहीं है। लेकिन असर की बात की जाए, क्योंकि आज चौथा दिन है और NH-44 जो उत्तर भारत की लाइफ लाइन है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बैरिकेडिंग की, सबसे मजबूत बैरिकेडिंग अंबाला में है, उसके बाद शाहबाद में है और तीसरी बैरिकेडिंग करनाल में है, उसके बाद सोनीपत में बैरिकेडिंग है। तो इससे कहीं ना कहीं हाईवे की जो लाइफ लाइन है वो प्रभावित हो चुकी है, ट्रैफिक रूट को डाइवर्ट किया है। तो स्वाभाविक है इसका असर लोगों पर पड़ा है, क्योंकि जो लोग सीधे अंबाला से दिल्ली जा सकते थे अब वो सीधे नहीं जा सकते, उनको करीब 50 से 70 किलोमीटर का लंबा चक्कर काट कर जो दिल्ली जाना पड़ता है। और दिल्ली भी वो जा नहीं पाते, दिल्ली से पहले ही उनको भालगढ़ जो है हरियाणा रोडवेज की बसें छोड़ देती है, उसके बाद वो किस तरह से यात्रा करेंगे वो भी उनके लिए चिंता का विषय रहता है। और बात की जाए कि असर की, उसके अलावा क्योंकि जिस तरह से पंजाब के बॉर्डर सभी बंद है, उसके बाद हरियाणा रोडवेज को काफी कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि रूट्स जो है वो टर्मिनेट किए गए, हरियाणा रोडवेज की बसें उन रूट पर नहीं चल रही, तो वे भी एक नुकसान है। लेकिन जो आज का असर था वो इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। अभिषेक सिंह भी है हमारे साथ। अभिषेक, किधर हैं आप अभी, और बताइए कि भारत बंद का आज क्या अंजाम देखने को मिला देश भर में? या बिल्कुल, हम इस वक्त लखनऊ में मौजूद हैं, लखनऊ के आउटस्कर्ट्स में मौजूद हैं। अगर कहा जाए तो पूरा ग्रामीण क्षेत्र है जहां मौजूद है, और यहाँ पर भी किसानों ने आज अपनी तरफ से भारत बंद के चलते अपनी खेती किसानी के काम को थोड़ी देर अवरुद्ध रखा। लेकिन अगर कहा जाए उदय, बहुत बड़े स्केल पर ये इफेक्टिव नहीं नजर आया। खासतौर पर उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात की जाए, लखनऊ की, और पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कहीं छुटपुट जगहों पर, खासतौर पर वो बॉर्डर के इलाके जो दूसरे स्टेट से पूरी तरह से सटे हुए हैं, चाहे वो दिल्ली से सटे हुए हों या बाकी, जो वहां पर थोड़ा बहुत देखने को मिला एजिटेशन। लेकिन बड़े स्केल पर यहाँ नॉर्दर्न इलाकों में या सेंट्रल में, यहाँ लखनऊ में बात की जाए, यहाँ पर उस तरह का एजिटेशन या उतना विरोध नहीं देखने को मिला। हाँ, सिंबॉलिकली किसानों ने अपना काम अवरुद्ध रखा, यानी अपना काम नहीं किया, दुकानें बंद रखी, बीज और खेती से जुड़े सामानों की जो किसानों ने दुकानें खोली हुई थी उन्हें बंद रखा, उनके शटर्स डाउन रखे। अपना खेती किसानी का जो डेली रूटीन वर्क होता है वो नहीं किया आज भारत बंद को सिंबॉलिकली सपोर्ट करने के लिए। जी अभिषेक, इस जानकारी के लिए, हमारे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.